Good morning, student. Today we are going to start your second chapter of science. Myself, Pragya, ma'am from MLK Girls Inter College. Today I am teaching you the chapter named acid, base, and salt. Earlier I have taught you chemical reactions and equation. If there is any problem related to that chapter, you may ask me on my WhatsApp number by sending image of questions written handwritten. Don't type the questions because sometimes the typing gets wrong. So either you may give me an images by writing in paper, or you may ask on my WhatsApp by calling me on my WhatsApp number from morning 8 to evening 8. Now I am starting the acid, base and salt. In general, firstly I tell you what is acid, what is base and salt in layman language. लेमैन मतलब किसी अगर हम जनरल आदमी को बताएं तो हम जनरल इंसान को, जो कि आपका पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं, उसे हम कहते हैं तो कहते हैं जो खट्टा है वो एसिड है, जो सोपी है यानी साबुनी जैसा है वो आपका क्षार है या बेस है। खट्टा है वो एसिड है, जो सोपी है वो बेस है, और जो उन दोनों को मिलाने के बाद रिएक्शन होकर जो मिलता है वो आपका लवण या सॉल्ट है। दिस इज़ द लेमैन लैंग्वेज डेफिनेशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पर इन द वे ऑफ साइंस we will define it on the basis of ions separated from acid and base. In acids they are H plus ion, and in base it is OH ion, which acids gives H plus ion in with what? In solution, यानी कि जल में या विलियन में एसिड H plus ion देते हैं, और जो आपके बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन्स देते हैं विलियन में। यानी according to this definition, a विलियन is required for acid and base. Then what about those which don't get soluble, and which about that, yani those substances या those compounds which are not soluble in water, they won't be acid and base? But this is not true. There is another definition of acid and base. The acids gives the electron pair, whereas the base accepts the electron pair. I am giving a general touch, then I will start this chapter. And salt is what? Salt is the one which we get after reacting of acid and base. If acid and base get completely neutralized, then we will get salt and water. मतलब कहने का ये है, अगर आपका एसिड और बेस को रिएक्शन करके कंप्लीट उदासीनीकरण हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, और अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता तो सॉल्ट मिलता तो है, इट मे बी एन एसिडिक सॉल्ट और इट मे बी अ बेसिक सॉल्ट, विच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस टेकन. इफ द एसिड इज मोर स्ट्रोंगर देन द बेस टेकन इन रिएक्टेंट, then the result we got must be acidic salt, and if the base is more stronger than the acid in the reactant, then the result we got is the basic salt. ठीक है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। अगर आपके इक्वल स्ट्रेंथ के आपने एसिड और बेस लिए तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो अब हम इनको पढ़ते चलते हैं। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस चैप्टर दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेस respectively present in them. In someone in the family is suffering from problem of acidity after overeating. Which of the following, आपने सुना होगा सोडा वाटर देते हो, ठीक है, या आप लोग क्या देते हो, खाना सोडा देते हो, या आप लोग क्या होता है, ऑल दीज आर बेसिक, तो अभी आ जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग विड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. लिसन वंस मोर, लेमन जूस, vinegar or baking soda. You will give the baking soda because baking soda is basic in nature. Then listen here once more. Which property did you think of while choosing the remedy? We will choose the remedy, basic remedy, because already the acidity is in the stomach. If will give the acidic thing, then acidity will increase. Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and base to nullify each other effect. भाई एसिड जहाँ हो रहा है, जो एसिडिटी क्रिएट होती है, वहाँ हम क्या देंगे? बेसिक चीज़, जिससे क्या हो, एसिड का इफेक्ट न्यूलिफाइड हो जाए और सॉल्ट बन जाए. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड अवर सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम. अब अगर भाई हर चीज़ को तो हम टेस्ट कर नहीं सकते, तो बताएं कि वो आपकी क्या कहते हैं उसे, खट्टी है या कड़वी है. बेसिक का वन मोर सॉल्यूशन, आई एम सेइंग दैट टचिंग इट इज़ सोपी, बट अगर हम टच नहीं कर रहे हैं तो हम टेस्ट करेंगे तो इट इज़ बिटर, सम वॉट बिटर. Which property did you think while अच्छा ये तो हो गया. नेक्स्ट वन, यू रेडी नो अबाउट द बेस्ट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर. ब्लू लिटमस टू रेड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लू लिटमस टू रेड. बट ब्लू लिटमस रेड ऐसे ही नहीं हो जाएगा. ब्लू लिटमस रेड कब होगा? जैसे मान लीजिए आपका है नींबू है, तो नींबू को आपने लगाया, ब्लू लिटमस रेड हो गया. पर वहीं कोई आप एसिड ऐसा ले लीजिए जो ड्राई है, ड्राई एसिड पे आप ब्लू लिटमस पेपर लगाएंगे, नीला नहीं होगा, तो सॉरी रेड नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए. वाटर चाहिए so that the acid can give out its H plus ion which get
react with the litmus paper content and gives a red color. Understand children? क्या होता है यार, अगर आपने आपका सूखा लिटमस पेपर ले लिया और एसिड भी सूखा है तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं होगा. उसके लिए हमें इन दोनों में से कोई एक चीज़ गीली चाहिए जिससे कि H+ कंटेंट निकले और आपका लिटमस पेपर से रिएक्शन करके ब्लू को रेड करे. इन द सेम कंडीशन बेस व्हेन दे आर ए सॉल्यूशन और व्हेन द लिटमस पेपर इज वेट इट्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ. आपने एक रेड लिटमस पेपर लिया, उसको साबुन के पानी में डाला, ब्लू हो गया. अब जब वो ब्लू हो गया तो आप उसको नींबू के ऊपर रख दिए, रेड हो जाएगा. फिर से आप उसको, ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक कि उसके अंदर कंटेंट रहेगा जो कि चेंज हो सकता है. तो ठीक है, ये आ गया लिटमस. तो आ गया जी, वेयर एज बेसेस आर बिटर एंड चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. लिटमस इज न्यूट्रल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर यानी कि जो नेचर से मिलता है. टर्मरिक इज अनदर such indicator. Have you noticed that the stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when a soap क्या है, बेसिक है, तो बेसिक कलर चेंज करे यानी कि आपका जो टर्मरिक है वो कैसी होगी. तो देखिए समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए. ब्राउन इन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर यानी कि वो कैसी होगी, एसिडिक. is scrubbed on it, it turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange, phenolphthalein. Methyl orange is used to test the acidic nature. In methyl orange is turns orange in the case of acids and remains colorless in the and methyl it remains colorless or yellowish in acidic. Whereas methyl blue, methyl yellow, एक methyl orange, methyl yellow. ऐसे ही आपका फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल येलो, बोथ आर यूज्ड फॉर एसिडिक टेस्टिंग. फिनोफ्थलीन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ व्हाट, टेस्टिंग ऑफ that is base. Phenolphthalein is colorless in acidic solution whereas it becomes pink in base. तो ये हम लोग करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन टू टेस्ट एसिड. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज आर टू सी इन आवर डेली. यहाँ देखिए, लिटमस सॉल्यूशन in a purple dye, litmus solution in a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thylophyta and is commonly used as an indicator. बात समझ रहे हो आप. ये लिटमस सॉल्यूशन क्या है बेटा, थोड़ा हेजी हो रहा है बीच बीच में. लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thylophyta and is commonly used as an indicator. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its colors is purple. Understanding? Then ये lichen वाला आपको मिल भी जाएगा कहीं भी. There are many other natural in materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia तो आपने देखा भी होगा, granium which indicates the presence of acid or base in a solution. You can do it at home also. These are called acid base indicator or sometimes simply indicators. Now we will go on next page. Beta, you all are having your books. Study your books by reading and see this video. You have been provided with 3 test tube. One of them contains distilled water and the other 2 contains acid solution and a basic solution. यानी एक में distilled water है, एक में acidic है और एक में basic है. अब आपको लिटमस पेपर से कैसे पता करोगे, अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो रहा, कोई भी लिटमस पेपर ले लीजिए, रेड ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, एनी लिटमस पेपर, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा यानी कि वो न्यूट्रल है. अगर रेड लिटमस पेपर आपने लिया और वो ब्लू हो रहा है यानी कि वो क्या है, क्या हो रहा है, बेसिक. और ब्लू लिटमस पेपर लिया वो रेड हो रहा है यानी कि एसिडिक. अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. नाउ कम हियर. एसिड्स आर, सम एसिड्स आर मिनरलिक एसिड. मिनरलिक एसिड जो अकार्बनिक से बनते हैं, इनऑर्गेनिक से, जैसे कि आपका H2CO3, H2SO4, HNO3, ऑल दीज आर मिनरलिक एसिड. ठीक है, इनकार्बनिक. एंड द एसिड्स विच वी ईट in lemon, in all citric fruits, in turmeric, in tartaric, in turmeric, all these are organic acids. In the same way there are mineralic base. Some bases are ammonia is a base, NaOH is a base, KOH a base, all these are base. And those some bases are also the pyridine, this is a base, organic base. So it depends upon the compound from which we get. Generally the organic acids and bases we found from animals or plants, but we can manufacture them in lab also. Now here we will do an activity. Collect the following samples from the science laboratory: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. These are the formulas of hydrochloric, sulfuric. Please study the formulas. 10th class and 9th class are very important to
study and read and what we say learn the formulas, the symbols of metals, non-metals means elements, and acid and base. What children do, they don't study, they don't take they what do they memorize the chapter, they memorize the chapter, they वो क्या रटते हैं आपके एसिड और बेस को. डोंट डू दिस. Firstly, you understand what are symbols of elements. After then, you come to know the valency of elements, and then you come to know the way to write the symbol of formula of an compound. The formula of a compound, we have to write positive thing first and negative thing afterward. Like sodium chloride, we will say NaCl. Na is always positive and chloride is negative. So come here. We have collected all these acids and bases, NaOH, यानी sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, all these. Put a drop of each of the solution on watch glass. Test drop of following indicators. अब क्या किया इन्होंने following indicator कौन कौन से देखिए, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज. तो हमने आपको बता ही दिया फिनोफ्थिलीन विल टर्न पिंक इन बेस, यानी बेस कौन से, जिनमें भी OH लगा ऑल दीज आर बेस, और जिनमें भी H लगा ऑल दीज आर एसिड्स. लिंसन HCl एसिड में है, H2SO4 H है एसिड है. एस्टिक एसिड में ये वाला H निकलेगा जो ऑक्सीजन के पास है, HNO3 में भी H. इनके आपको स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, तो बताया जाएगा वो H जो O के पास लगता है, दैट टेल्स द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड. ओके, एंड हियर दीज आर OH, दैट मीन्स दे आर बेसिक. तो बेसिक में फिनोफ्थिलीन पिंक कलर की हो जाएगी, जब तक एसिडिक में उसका कोई रंग चेंज नहीं होगा. ऐसे लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर विल टर्न्स ब्लू इन bases, and blue litmus paper will turn red in acids, and methyl orange will turns orange in acids and remain yellowish or light color in base. Next we will come here, it is given, you will do this activity by yourself. These indicators tells us whether substance is acidic or basic by changing its color. There are some substance, those odors, ऑर्डर मतलब उसकी खुशबू, चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक. देखिए एसिडिक जो होता है खट्टा खट्टी स्मेल होती है, ठीक है, और जो क्षारी होता है उसकी कड़वी कड़वी स्मेल होती है. दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. लेट अस ट्राई आउट सम इंडिकेटर्स. टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन. अनियन का भी देखिएगा कैसी होगी आपकी, तीखी तीखी सी स्मेल होती है ना. प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम. अब इसको करके देखिएगा, इसको आप खुद करके देखिएगा. क्या करके देखिएगा, इसके ऊपर लिटमस पेपर लगा के देखिएगा. टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट. क्या किया इन्होंने, देखिए समझिएगा, चॉप्ड की यानी कि काटी प्लास्टिक अनियन इन द प्लास्टिक बैग एंड अलॉन्ग सम स्ट्रिप ऑफ द क्लीन क्लोथ. टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज. द क्लोथ स्ट्रिप कैन नाउ यूज टू, क्या होगा, बदबू आती है कि नहीं. टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस. एसिड की खट्टी होगी और अगर तीखी है तो बेस की होगी. टेक 2 ऑफ दिस क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडर. और आप उससे भी टेस्ट चेक कर सकते हो. कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH. एक पे आपने HCl डाला, अगर रिएक्शन कर रही है तो यानी कि वो क्षार है, और अगर रिएक्शन नहीं कर रही तो एसिड है. फिर आप क्या डालोगे, NaOH डालोगे. अगर भाई पहले एसिड थी, HCl डालने पर रिएक्शन नहीं करी तो NaOH डालने पर रिएक्शन कर जाएगी. दिस मीन्स यू कैन टेस्ट बाय चेकिंग डालिंग. अब आ जाइए रिंस. ये देखिए रिंस बोथ द क्लोथ. रिंस मतलब धो लीजिए अच्छे से. क्लोथ स्ट्रिप विद वाटर अगेन. Check their odor. Note your observation. Now take some dilute vanilla essence and clove oil. Clove यानी कि जो आप ये लौंग होता है उसका ऑयल. एंड चेक देयर odor. ठीक है, और यही काम उनके साथ कीजिए. तो बेटा ये आप कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा. आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगी. तो ये देखिए, विच ऑफ दीज वनीला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडक्ट्री ऑन बेसिस ऑफ योर एक्सपेरिमेंट. ये देख लीजिए. हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल. तो अभी हम आपको बताएंगे कुछ मेटल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है. दीज आर हाईली रिएक्टिव विथ रिएक्ट्स विद मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस. ठीक है, द मेटल्स विच आर हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज दे रिएक्ट विद acids to release hydrogen gas. Those all metals which are above the hydrogen in reactivity series, either with cold acids or with a strong acid, they will release hydrogen. But those who are weak metals, as like I will say here it is given this aluminum and other, though they will react with concentrate acids and some will get oxidized. Some will get oxidized and further they won't react. So here it is given what is this, the activity it is given. The activity needs the teacher's assistant. Set the apparatus as following. ये देखिए आपका apparatus set है. इसके अंदर क्या क्या है, टेस्ट ट्यूब लगा रखा है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, टेस्ट ट्यूब लगा रखी है. इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बबल बनेगी. डाला क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रैन्यूल्स.
जिंक क्या मेटल है। एक बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी हम एसिड के अंदर पानी नहीं डालते वरना ब्लास्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड डालते हैं। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड? द डाइल्यूट वर्ड मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस, and the concentrate means the amount of solute is more and the amount of the solvent is less। जैसे हम कहते हैं concentrate H2SO4 यानी कि H2SO4 ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, पानी कम। and when we say dilute H2SO4 it means it contains water content more and acid content less। when we say 20% of H2SO4 it means 20% यानी कि 100 में 20 ml H2SO4 and the remaining are water। understand? Whenever you buy the acid, there are written the gravity and also its percentage। the gravity tells it's the purity and the percentage also tells the purity of the acids। by gravity we can also come to know which acid is it। तो आपने ये देखिए करा, तो इसमें क्या हुआ, जब आपने जिंक ग्रेन्यूल्स और H2SO4 डाला, ये ऊपर आपने कॉक से बंद करके एक आपने ये टेस्ट ट्यूब दी, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकली। जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो देखिए द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, बप करके बंद हो जाएगी। ठीक है, ये बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स हाइड्रोजन गैस के जो ऊपर की तरफ जाएंगे। हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या है बेटा, हल्की होती है। तो ये आपके इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। अब रिएक्टिविटी में देखिए, रिएक्टिविटी में कौन सा HCl ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग या HNO3 CH3COH। तो CH3COH सबसे वीक बेस होता है, HNO3 HCl फिर है। इस तरह से आपका HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HClO4। वो क्यों होता है, रीज़न वो आप आगे जब जाओगे क्लास में बेटा तब पढ़ोगे। अभी सारी चीज़ मैं पढ़ा दूँ तो वो चीज़ आपको समझ में भी नहीं आएगी। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन। सारे मेटल नहीं डिस्प्लेस करेंगे, सम मेटल्स वोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन बिकॉज दे मेटल्स आर वीक और मे गेट ऑक्सीडाइज। तो दिस इज सीन इन हाइड्रोजन गैस। द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे मैंने आपसे कहा जिंक H2SO4 के साथ किया तो बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखिए ये बेटा, ऐसे NaOH को लिया, NaOH को जिंक के साथ लिया। जिंक क्या है आपका, दोनों के साथ रिएक्शन करता है। जिंक इज अ मेटल विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस बोथ। with base it forms a compound that is Na2ZnO2। it is called sodium zincate। what it is called, sodium zincate। so there are some metals which reacts with both, as like aluminium also reacts with both। aluminium reacts with H2SO4 too and it also reacts with NaOH। with NaOH it forms aluminium zincate and with H2SO4 it forms aluminium sulfate। so some metals are those which can react with acid and base both। these metals are called amphoteric metal। amphoteric means those which can react with acid and base both। so here now comes the how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acid। are you understanding what I mean? metal carbonate जैसे हमने सोडियम की बात करा तो it will the reaction of the symbol क्या होगा, Na2CO3। what we call Na2CO3। Na2, why we are putting Na2? because the valency on sodium is 1 and the valency of carbonate is 2। so when we cross multiply then it is gives Na2CO3। and while if we will say calcium carbonate then it will be CaCO3 because the valency on calcium is 2 and also the same in carbonate, the formula becomes CaCO3। so here you are seeing that Na2CO3 when reacts with HCl, what will happen, the double displacement reaction will happen, it will becomes NaCl, H2O and carbonate। when the carbonate react, carbon dioxide gas is released। also when the bicarbonate reacts it also gives a what, carbon dioxide। here these both are solids, that's why we will needs HCl in aqueous solution, otherwise the reaction won't occur। here we are taking calcium hydroxide to which we also call slake lime or lime water। when it reacts with carbon dioxide we will get in the previous chapter I told you what happened when the calcium carbonate यानी चूना पत्थर को जब आप पानी में डालते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबले निकलते हैं और इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप चूना को लाके घर पे करके देख लीजिए, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ़ यू विल पुट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, आप उसको गिलास में लीजिए, पानी कांच के गिलास में, और उसमें थोड़ा सा चूना डाल दीजिए, आप देखेंगे बुधवार के साथ गैस निकलेगी, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपका वो गर्म हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको, CaOH का होल ट्वाइस। फिर से आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालिए तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट calcium carbonate and water, and this is the process। and in calcium carbonate if we put H2 and CO2 it will become calcium bicarbonate। ठीक है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करते रहें लिक्विड फॉर्म में तो इट विल फिर अगेन देखिए मैं आपको बताऊं, इट विल अगेन बिकम कलरलेस।
आपने कैल्शियम कार्बोनेट में जब क्या किया, जब कैल्शियम कार्बोनेट में आपने क्या किया, पानी डाला, ठीक है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारी निकल गई और जो नीचे बैठ जाए उसे हटा दीजिए और ऊपर को छान लीजिए, तो वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा बेटा, जो कि कलरलेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या होता है, कलरलेस। अब उसमें आप कीजिए कलरलेस में आप क्या पास कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ ऑफ वाइट कलर CaCO3। अब उसमें और पास करते चाहिए और CaCO3 वाइट कलर और क्या होगा, अब शेप बना के नीचे बैठ जाएगा। अब उसमें कंटिन्यूस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते चलिए, तो क्या होगा, आपको मिलेगा स्लेग लाइम डेट इज CaHCO3 सॉल्युबल इन वाटर, जो कि कलरलेस होगा, ठीक है। तो लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल, ये सब क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट आर डिफरेंट फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अलग अलग क्या है, फॉर्म्स मतलब उसकी तरीके। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? तो आज हम इसी पे कर रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप एंड यू कैन कॉल मी एंड यू कैन गिव एन इमेजेस ऑफ योर प्रॉब्लम। आई विल ट्राई टू get it solved as soon as possible I get the time. Thank you.